لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, آپ ایکسپرٹ ہیں, کہ کیا ایک چھوٹا سا سرٹن اماؤنٹ کیا ہمیں انشورنس میں بھی کرنا چاہیے؟ جی بالکل, کہ انشورنس کی پالیسیز بھی ایک, ہاں یہ بہت اچھی ہے جی فیوچر میں جو ہے, کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی بینکر ہی ہیں تو وہ اکثر مجھے سمجھاتے رہتے, تو میں نے خود بھی ایک انشورنس پالیسی لی ہوئی ہے جس میں آپ ہر سال کچھ اماؤنٹ دیتے ہیں اور پھر وہ آپ 10 سال یا 20 سال بعد آپ کی وہ ڈائلیوٹ ہوتی ہے. تو آف کورس وہ ہے, بٹ وہ تو آپ کی پھر باؤنڈ ہی ہو جاتی ہے نا کہ آپ 10 سال تک کریں اس کو. صحیح. اچھا, آپ کے پاس جو یوزلی جو خواتین جو آ کے اپنا نیا بزنس بھی شروع کرتی ہیں, وہ کس چیز میں زیادہ پیسے انویسٹ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, ہمارے یہاں ایک بہت ہی انفارچونیٹلی ایک خواتین کا جو مائنڈ سیٹ ہے انٹرپرینیور ہونے کا, ان کا ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے آج بزنس اسٹارٹ کیا نا تو کل سے تو ہم بہت ہمیں پیسے مالا مال ہو جائیں گے. بٹ جو میرا انٹرپرینیورل ایک جرنی ہے, تو مجھے کمانے میں بھی مجھے 5-6 سال لگانے پڑے اس بزنس میں. ہیو پیشنس, کنسسٹنسی. ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج اسٹارٹ کیا ہے اور کل سے میں وائرل ہو جاؤں گی اور میں مالا مال ہو جاؤں گی, ایسا نہیں ہے. انفارچونیٹلی پیشنس کم ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ مینٹورشپ نہیں ہے. انٹرپرینیورس کہاں مینٹورز ہیں؟ جو یونیورسٹیز میں بھی انٹرپرینیورشپ پڑھا رہے ہیں, انفارچونیٹلی وہ بھی ٹیچرز ہی ہیں, انہوں نے بھی کبھی انٹرپرینیور وہ ہے ہی نہیں, بزنس بنایا ہی نہیں, تو بزنس سکھائیں گے کیسے؟ سیکنڈلی ہمارے ایک اور چیز بھی ہے, جب ہم خواتین کو ٹرین کر رہے تھے, کیونکہ میں خود مینٹورشپ پہ بہت کام کرتی ہوں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں انکوبیشن میں کام کر رہی ہوں, تو میں خواتین کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ جو آپ کا اسٹارٹ اپ ہے یا اس کو بڑا بزنس بنانا ہے نا, آپ کو بہت پیشنس سے کام کرنا ہے. کم سے کم کتنے پیسوں سے ہم شروع کر سکتے ہیں, اور کیا چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ خواتین کے لیے زیادہ ایزی ہے جو گھر بیٹھے بھی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی جو آپ کی سکلز ہیں نا, آپ اسی کو یوز کریں. بیکنگ اچھی کرتی ہیں, چھوٹے سے اماؤنٹ سے 50,000 لاکھ روپے سے اسٹارٹ کر لیں. سب سے پہلے میں ہمیشہ جو کیلکولیٹ کرتی ہوں, کیونکہ میرا بھی ایک کلودنگ بزنس ہی ہے جو میں نے ابھی فار دا انڈر پریولیج خواتین جو بٹشا میں نے ایک سیٹ اپ لگایا بلاک پرنٹ کا, جو میں نے پہنا ہوا بھی, تو ان کو میں نے کرنے کے لیے تو ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا. اچھا, میں یہ کہتی ہوں کہ سارا پیسہ آپ نے نا مٹیریل میں نہیں لگانا. اگر آپ 40% مٹیریل میں لگا رہے تو 60% مارکیٹنگ میں لگائیں. بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مارکیٹنگ میں اور آپ کی فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی, دیکھیں ہمیشہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو دکھے گا وہ بکے گا, بٹ اب ایک کانسیپٹ ہے جو مہنگا دکھے گا وہ مہنگا بکے گا. یہ دو چیزیں جب آپ سیکھ لیں گے اور پھر آپ رک جائیں, ایسا نہیں ہے کہ کل سے ہی مارکیٹنگ میں پیسہ لگائے تو دوسرے مہینے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, کسٹمر فیڈ بیکس ہوتے ہیں, بہت ساری چیز ہوتی ہے. ورڈ آف ماؤتھ از ویری امپورٹنٹ. اور چھوٹی سی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انویسٹ, جو ورڈ ہوتا ہے نا انویسٹ کرنا, صرف پیسے میں انویسٹ نہیں ہوتا, آپ اپنی اسکلس میں بھی انویسٹ کرتے ہیں, آپ اپنے اوپر بھی انویسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ اس ٹیکنالوجی سے اتنا دور نہ ہو جائیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی خواتین بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں, میں خود بھی سم ٹائمز ٹیکنالوجی میں کہیں ہم پھنس جاتے ہیں, تو وہ اتنا ڈرتی ہیں, ان کو نہ انسٹاگرام یوز کرنے آتا ہے, نہ ان کو ٹک ٹاک پہ جو آج کل وہ ہے ساری چیزیں, یا کس طرح سے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے, تھوڑی نو ہاؤ ضرور ہونی چاہیے. ایک چیز اور بھی میں بتاتی ہوں, ایک انٹرپرینیور جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, اس میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے. ہم بہت ڈرتے ہیں ہائرنگ کرنے سے, مگر میرا ایسا بلیو ہے کہ جب سے میں نے ہائرنگ شروع کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت برکت دی ہے, کیونکہ دوسروں کی روزی جب آپ کی روزی سے جڑتی ہے تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے دیتے. تو میں کبھی بھی, جب سے میں نے ہائرنگ شروع کی ہے, میں پروفیٹیبل ہوں. اچھا, یہ واقعی بڑے بزرگ کہتے تھے کہ لوگوں کو ساتھ میں انوالو کرو, کیونکہ اگلے کے مقدر کا بھی آپ کے ایڈ ہونے لگ جاتا ہے. یہ اتنا میٹر کرتا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے بھائی یہ پتہ نہیں اللہ میں میری چیزیں کیسے چل رہی, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جو نیچے آپ کے ساتھ جو آپ کا اسٹاف چل رہا ہے نا, تو ان کے نصیب سے بھی تو آپ اس میں ایک نوانس آ گئی. ٹھیک ہے, اس میں نوانس, یہ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ آپ لوگوں کو ہائر کریں, لیکن صحیح لوگوں کو. اسمارٹ سب سے امپورٹنٹ ہے بزنس چلانے میں. آپ کی پروڈکٹ امپورٹنٹ ہے, آپ کی مارکیٹنگ امپورٹنٹ ہے, لیکن جو آپ کی جو ہائرنگ ہے نا, آپ کی ہائرنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ کے اگر آپ نے اچھے لوگوں کو ہائر کر لیا تو آپ کا بزنس زمین سے آسمان تک پہنچ سکتا ہے, اور اگر آپ نے غلط لوگوں کو ہائر کر لیا تو آسمان سے زمین. بالکل آسمان سے زمین, بلکہ آسمان سے زمین, آپ کی زمین, آپ کو زمین کے اندر, اور آپ زمین کے اندر. تو میرے دونوں ایکسپیرینسز رہ چکے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی ہائر کیا ہے جو مجھے آسمان سے زمین تک لے کے جانا چاہتے تھے, اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی ہائر کیا ہے جو زمین سے آسمان تک. اچھا, اس میں یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ کیسے آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے بندے کو ڈھونڈیں جس کے اندر ہنگر ہے.
अच्छा जो शुरू का जो आपका फर्स्ट एम्प्लॉय होगा वो ऐसा होना चाहिए जो एक तो हंग्री हो, मेहनती हो. ऑब्वियसली आपने ये चीज उसके अंदर देखनी है. अच्छा मेहनती आप कैसे जज कर सकते हैं कि वो बंदा मेहनती है और उसके अंदर हंगर कैसे है? आप इंटरव्यू पे सवाल करेंगे और इंटरव्यू में आप इनडायरेक्ट सवाल करेंगे. इनडायरेक्ट सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. जो आप घर पे जो खानसामा भी हायर करें ना, मासी भी हायर करें, किसी के लिए भी हायर करें, इनडायरेक्ट सवाल आप ये करें कि पिछली नौकरी क्यों छोड़ी थी. ठीक है, तो उसमें वो आपको अपना माइंडसेट बता देगा कि वो जो है ना उधर मुझे काम कराते थे, बोला था कि 2 रोटियां बनानी है रोज की, अब मुझे 3 बनानी पड़ती हैं. उधर ही से आपको पता चल गया कि बंदा जो है मेहनत से कतरा रहा है, मेहनत से कतराने वाला बंदा है. कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा वो मैंने पिछली नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि वो लोग ना ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए थे. वैसे तो मैंने ज्यादातर यही बोलते हैं 5 साल काम किया. सही है, अब आपने थोड़ा सा और कुरेदना है और उसके बाद आपने पिछले वाला जो उसका एम्प्लॉयर है उससे रेफरेंस चेक लेना है. रेफरेंस चेक लें, 2-3 जगहों से रेफरेंस चेक लें. कभी कभी वो लोग गलत नंबर भी देते हैं. ये इस पे ना हम काम नहीं करते. हम ऑब्वियसली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मार्केटिंग पे. ऑब्वियसली एज अ बिजनेस ओनर आपके पास इतना सारा काम होता है कि मुश्किल होता है. HR अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, HR ह्यूमन रिसोर्स पे आपने भी काम करना है. और जैसे ही आपके पास पैसे आए ना, सबसे पहले आप HR का बंदा हायर करें. मेरे पास ये मैंने मिस्टेक की है कि मैंने HR का बंदा हायर नहीं किया. अब मेरा डिपार्टमेंट है HR का, जिनका पूरे दिन काम है छाटी मारना बेस्ट लोगों को लाने की. और उस पर फिर मैं पैसा नहीं देखती, उस पर मैं रिसोर्सेज नहीं देखती. आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए. अगर मुझे ऐसा बंदा मिल गया जो हार्ड वर्किंग है, जो है उसकी पिछली जो जॉब्स उसने छोड़ी हैं उसका रीजन सही था, या जैसे अभी मैंने क्वालिटी कंट्रोल में बड़े जबरदस्त पर्सन को हायर किया बहुत बड़ी कंपनी से. वो पिछली जगह पे 10 या 12 साल से काम कर रहे थे और उनका छोड़ने की वजह ये थी कि उनको कोई रेज ही नहीं मिली थी. उनको उनके ये पैसे भी नहीं बढ़ने दिए. जस्टिफाइड चीज़ Right? है. तो हाँ. और लेकिन अच्छा कुछ लोग हैं 6 महीने काम करके रेज नहीं मिली, 3 महीने काम करके रेज नहीं मिली. ये वाले लोग आपने नहीं हायर करने हैं. तो ये सवाल करने, सीवी देख के आपने सवाल करने हैं कि भाई छोड़ क्यों रहे हो. इससे आपने बंदे को डिसाइड करना है और इसमें आप टाइम लगाएं. अच्छा वैसे इन्वेस्ट जब किया था, मैं बहुत सारी खवातीन को कहेंगे अच्छा जी हमने भी कुछ शुरू करना है, तो कितने पैसों से वैसे शुरू किया था? मैं पूछूं, मैंने तो बड़े अमाउंट से शुरू किया था. तो आई स्टार्टेड. और अपनी कितनी सेविंग्स, बिकॉज ऑफ कोर्स जो कोमल है वो क्योंकि लीड एक्ट्रेस कोमल है, अपनी कितनी परसेंट अमाउंट जो अपने बिजनेस पे डाल रही है, कितनी अपनी सेविंग, क्योंकि देखिए बिजनेस में ना इन्वेस्ट करते हुए हमें डर लगता है. और स्पेशली हम लोग जो नौकरी पेशा लोग होते हैं ना, हमें टेंशन नहीं होती कि अगर सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया ये डूब गया तो हम किधर जाएंगे. बिजनेस बहुत छोटे अमाउंट से आपने स्टार्ट करना है. जितना छोटा आप कर सकते हैं उतने छोटे अमाउंट से आप शुरू करें. तो मैंने भी क्या किया था, लेट से अगर मैंने 100 रुपीज अर्न किए थे टोटल अपने, मैंने 3 साल अर्निंग की थी और उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था. तो वो जो 3 साल में लेट से अगर मैंने 100 रुपीज सेव किए थे तो उसमें से मैंने 30 रुपीज बिजनेस में लगाए थे, 70 रुपीज मैंने जो है अपनी सेविंग में, म्यूचुअल फंड्स में और इधर उधर रखे हुए थे. क्यों रखे हुए थे? 30 रुपीज लगाने में ये था कि अगर ये जाया हो गए, क्या पता बिजनेस को दोबारा से भी जरूरत पड़ सकती है. लोग सोचते हैं कि 30 लगाए बिल्कुल आराम से बैठेंगे, नहीं कल को 60 होने वाले हैं. 2 दिन में 60 होंगे. क्योंकि बिजनेस ओनर तो ऐसा होता है कि बस रातों रात कर लेंगे भाई. हाँ, क्योंकि उन्होंने बताओ देखा, उन्होंने नौकरियां की हैं बड़े बिजनेस ओनर्स के पास, उन्होंने उनको अमीर देखा है. ठीक है, अब वो कहते हैं ये कितने अमीर लोग थे, अब हम बिजनेस करेंगे, हमने इनके साथ काम किया, अब हम इनका काम छोड़ के बिल्कुल ऐसी काम अपना खुद शुरू करने वाले, रातों रात इनकी तरह अमीर होने वाले. ऐसा कुछ नहीं होता. और वो भी जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस के अंदर वो जॉब करते हैं और उनका ऐसा माइंडसेट. अच्छा जैसे मेरे भी कुछ एम्प्लॉइज उन्होंने ऐसा किया कि मैंने माशाल्लाह मुझे जल्दी सक्सेस मिली, लेकिन मुझे जल्दी सक्सेस मार्केटिंग की वजह से मिली. क्योंकि मैं एक्टर थी, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स थे, तो मुझे सक्सेस जल्दी मिल गई. राइट, बट मैंने पिछले शो से भी बताया कि मुझे हमेशा एक्चुअली बिजनेस ओनर बनना था. तो मैंने बिजनेस शुरू करने की वजह से पहले एक्टिंग की थी. पहले मैंने एक्टिंग की ताकि मेरे पास पैसे इकट्ठे हो सके और मार्केटिंग के पैसे बच जाए. फिर मैंने बिजनेस शुरू किया था. ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है. अच्छा आप भी क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर थे, तो आपने भी मुझे बताएं जरा कि किस तरह से बिल्डअप करना शुरू किया. देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है. कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें फाइनेंसेस की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है. जैसे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास एक लैपटॉप है, आप और कुछ भी नहीं, आपके पास स्किल्स हैं, आपने एफिलिएटेड मार्केटिंग करें, आप किसी और की चीज़ों को मार्केट करें और उसका सर्टेन जो कमीशन है उस कंपनी का वो आपके अकाउंट में जाता है. तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों. बिजनेस जो है ना ये माइंडसेट होता है. ये मैं समझती हूँ कि अगर जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो
हज़ारों लोग हैं बिजनेस नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसे ही। बिजनेस के लिए एक माइंड सेट चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए आपको, पेशेंस, ओ माय गॉड, ये बहुत forward जरूरी है। एक और चीज है, Forward रिस्क think. टेकर हूँ आप, हसलर हूँ। कैलकुलेटेड रिस्क ले बंदा, ऐसे नहीं कि बस मैंने किसी को सारे फंसे देखा ना नदिया जो है वो बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बन गई, अब मैं भी जो है वो जंप लगाना है। कैलकुलेटेड रिस्क बिल्कुल लें, ऐसे आप ही। अपने स्किल्स को देखें और आप अपने वक्त को देखें। टाइम जो है ना उसको वैल्यू नहीं करते हैं, टाइम को वैल्यू करें, टाइम को देखें आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना काम शुरू करें। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, तो जैसे मेरे पास भी नहीं थे, बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं थे, आई हैड नथिंग, ना मेरा कोई फैमिली में कोई ऐसी सपोर्ट थी, तो मैंने क्या किया था कि मैंने पहले एक्टिंग की थी और एक्टिंग से मैंने पैसे भी कमाए थे और नाम भी कमाया था। अब ये बात कही जा सकती है कि बहुत सारी लड़कियों को इस तरह इजाज़त नहीं है कि वो जाके एक्टिंग करेंगी और उधर से पैसे कमाएंगी और उधर से नाम बनाएंगी। तो आजकल एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब जैसे चैनल्स हैं, फूड रेसिपी के चैनल्स हैं, उसमें आपने ना अपना फेस दिखाना है, ना आपने कुछ करना है, आपने खाना बनाते हुए दिखाना है। उससे अगर आपने फॉलोइंग गेन कर ली, आप अनबॉक्सिंग की, जैसे दूसरे बिजनेस की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, उधर से आपने फॉलोइंग गेन कर ली, आप अपने फेस को कवर कर लें। अगर आप हिजाब करते हैं, निकाब करते हैं, फेस को कवर करके इतने तरीके हैं आर्टिस्टिक तरीके से, आप अपना ब्लॉग बनाएं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, उधर से आप अपनी फॉलोइंग इंक्रीज करें, ठीक है। उधर से फिर आपको दूसरी ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलेंगी जहां से आप पैसे भी कमा सकते हैं और फिर आप अपना ब्रांड लॉन्च करें। अगर जैसे आपका बेकिंग अगर आपने करनी है तो आप बेकिंग कर करके दिखाएं और उससे जब आपकी फॉलोइंग बन जाए फिर आप वही चीज़ को बेचना शुरू कर दें ऑडियंस को। एक और चीज़, मैं अक्सर ख़वातीन, क्योंकि देखिए वेस्ट में ये गज़ली मेरी बात से वो भी मुतफ़िक भी होंगी, लोगों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है कि जी आपको बेबी सिटर जो चाहिए होती है ना, क्योंकि ख़वातीन काम भी करनी, तो पीछे से वो ख़वातीन में कुछ ख़वातीन को ऐसे जानती हुई जिन्होंने बाहर अमेरिका में रहते हुए, यूके में रहते हुए, जिन्होंने लोगों के बच्चों की बेबी सिटिंग की हुई है। उन्होंने कहा हम ठीक है हम घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहे थे बट वो अपनी कोई कमाई करना चाहती थी, तो उन्होंने ऐसे बेबी सिटिंग करना शुरू की कि जो जी बिल्कुल होम टेकिंग, कि आप जो माँ है वो ऑफिस जाते हुए उसने बच्चा आपकी तरफ ड्रॉप किया और आपने बच्चे को सारा दिन आपने संभाला और उसके बाद माँ ऑफिस से वापस जाते हुए बच्चे को आपसे लेते हुए घर चली गई और आप बच्चे का ख्याल करें, आप घर से बाहर भी निकले, आप घर में भी रहे और आपने एक बच्चे को टेक केयर करते हुए अच्छे संभालते हुए। मैंने लोगों को देखा लोग बिल्कुल अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा कम है क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग दादियाँ नानियाँ बड़ी सपोर्ट होती है, हमारे उनके पास छोड़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन वो उनके पास, लेकिन जिनकी नहीं है, फर्ज करें जैसे अगर मैं हूँ, मेरे बच्चे, मेरी तो फैमिली लाहौर में रहती है, मेरी मदर की डेथ हो गई है और अल्लाह बख्शे मेरी सास, अल्लाह उनको जन्नतों में आला मुकाम दे, उनकी भी डेथ हो गई है। तो अब मेरे पास कौन है? तो आपके पास एक ये भी अच्छा है कि अगर आपको लगता है कि आप बच्चों को संभाल सकते हैं तो आई बिलीव ये भी बहुत अच्छा एक तरह से आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। घर के अंदर बैठते हुए, घर के अंदर आप 1-2 बच्चों से शुरू करें, देन यू जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम। ऑनलाइन ट्यूशंस दे सकते हैं, ट्यूशंस हैं, मैंने बात की थी। लेकिन छोटे बच्चे देखिए, हर ऑफिस में पाकिस्तान में अल्लाह करे वो दिन भी आए कि अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट में डे केयर भी होते हैं, लेकिन अगर नहीं है, ये हमारा इदारा है, मैं इससे पहले एक बहुत बड़े इदारे में थी, नहीं था वहाँ डे केयर। मैं अपने बच्चे को जिस तरीके से इस अजियत में रह के फीड कराती थी कोने खुदरों में छुप के, तो मुझे पता था कि वो मेरे पे क्या गुजरी होती थी। लेकिन अगर डे केयर होता मेरे लिए कितना आसान हो जाता। तो ये अगर चले नहीं है, लेकिन ये सिस्टम भी मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर आप घर में अपने कोई छोटा सा डेकर खोलना चाहें तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? देखिए इसमें ये कि एक्सपर्टीज आपको चाहिए फिर लोग जो है ना एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते क्योंकि स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फिर क्रॉस चेक नहीं है, फिर हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे अगर चले कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपकी सिक्योरिटी, फिर आपने एक्सपर्ट जो फीडिंग एक्सपर्ट हों, जो बच्चों को फिर पढ़ा भी रहे हों, स्कूलिंग कर रहे हो, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा ये सही कह रही है, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप अपना बच्चा किसी के हाथों में दे रहे हैं। अब उसका माइंडसेट क्या है, वो गालियां निकालने की आदत है, उसको लूज टॉक करने की आदत है, वो बच्चा सारा सीखेगा। फिर उसके घर का क्या माहौल है, ये भी एजुकेशन के बगैर नहीं हो सकता। बट बहुत अच्छे डे केयर्स भी कराची में हैं जो बड़ा अच्छा टेक केयर करें। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा शायद पे करना हो, मगर ये कि ये बहुत ही एज अ मदर मेरे लिए तो ये बड़ा रिस्क है कि मैं अपना बच्चा, फिर वो अगर वो घर में सेटअप है तो उनके घर का क्या माहौल है, फिर कौन आ रहा जा रहा है, ये सारी चीजें ये वाला आइडिया जो है थोड़ा अच्छा तो बहुत है बट इस पे बहुत वर्किंग। लेकिन वर्किंग जैसे वेस्ट में भी होता है कि वो प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं, वो प्रॉपर उसका लाइसेंस लेते हैं, एक चीज वो जगह दिखाते हैं कि क्या है। बट यहाँ पे ये चीज रेगुलेटेड नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ नहीं चलेगी। हमारे घर में जो काम करने वाली जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, अगर वो कुछ गड़बड़ करती है हम उसको ही नहीं पकड़ पाते। बिल्कुल ऐसे ही है, चले जाते हैं
रातों रात छोड़कर एक शहर से दूसरे शहर में कहाँ हमें पता नहीं ढूंढेंगे? चलता। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो। ये एग्जैक्टली जो मैंने इसमें बात भी की थी, इकोनॉमी हर चीज हर शय का कोई भी आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। अच्छा, कितना वैसे फायदा होता है अगर कोई खातून बिजनेस शुरू कर रही हो और एंटरप्रेन्योर्स हो और वो कहीं उनका एनटीएन नंबर बनाओ? जी, ठीक है, एनटीएन तो मैं फाइलर हो कहती हूँ आप, कि बेसिक है। अगर आपने आज भी सोचा हुआ है कोई काम करने का तो एनटीएन तो आपने फौरन बनवाना है, क्योंकि हर चीज डॉक्यूमेंटेड हो। और खवातीन को जो ये डर है ना कि आज हमने एनटीएन बनाया तो कल जो है इनकम टैक्स की टीम हमारे दरवाजे पे होगी, ऐसा नहीं होगा। एक साल के बाद आपको टैक्स करना पड़ता है, वो भी वो जो आपने अर्न किया उस हिसाब से होता है। दूसरी चीज ये है कि जब हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है, ग्रांट्स आ रही है, फंडिंग आ रही है, तो जब आप एनटीएन ही आपका नहीं होगा, आप टैक्स पेयर ही नहीं होंगे, तो आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेल कैसे करेंगे? आप बिजनेस लोन नहीं ले सकते, एनटीएन नहीं है। तो मैं हर जो भी मैं इनक्यूबेट कर रही हूँ या मेंटोरशिप कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले सवाल करती हूँ एनटीएन है कि नहीं है, और नहीं है तो मैंने कितने लोगों का बनवाया भी है कि प्लीज एनटीएन बनवा लें, कुछ नहीं होता, खौफ निकालें। बिल्कुल। और ये टैक्स फाइल करने से तो भाई मैं आपको बताऊं, आपको इतना फायदा है। आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आप कुछ भी चीज, उसमें जो फाइलर होता है ना उसका अपना एक डिस्काउंट है, और जो फाइल नहीं कर होता फिर उसको जो है उसको ठीक ठाक डज पड़ती है। मैं फिर भी ऐसे लोगों को जानती हूँ, वो कहते जी हम गाड़ी महंगी खरीद लेंगे, हमने जनाब टैक्स अदा नहीं करना। ऐसे ऐसे मेरे ढीठ भी देखे, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को सबसे चीखा मारते हुए भी देखा है जिनके बैंक अकाउंट से नहीं खोलते वो। जी जी भाई, फिर अच्छा, उनके गोदामों से निकलते। वैसे छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब बचत के वाले से बात हो रही थी तो